Hello students, welcome to the third video lecture on the force and laws of motion. In this unit, earlier we discussed that the force and laws of motion, what is the force, meaning of the force and why the force is required. किसी को बॉडी को रेस्ट में से मोशन में लाना है तो फोर्स चाहिए, फास्ट मूविंग बॉडी को स्टॉप करना है तो फोर्स चाहिए. फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्पीड अप द मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज करना है तो फोर्स इज रिक्वायर्ड, डायरेक्शन चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, और टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी फोर्स इज ए रिक्वायर्ड. There are the two types of the forces, balance and unbalanced force. Balanced force means when force is applied but motion is a not takes place, this force is known as a balanced force. Unbalanced force means force is applied to unequal forces applied in a opposite direction, one is greater than the other, then body is a move in the direction of the greater force. This known as a unbalanced force. Unbalanced force produces a motion. ये पढ़ा. उसके बाद friction which opposes the motion, force of friction which opposes the motion, this known as a friction. Then Galileo experiment पढ़ा. अगर ये स्मूथ सरफेस है, इतना हाइट से कोई बॉल छोड़ेंगे तो ये इनका रोल होके नीचे आएगा और सेम हाइट पे ऊपर जाएगा. When inclination angle अगर डिक्रीज करेंगे तो it will go the longer distance. This is the experiment. Then first law of motion पढ़ा. When body is in a rest or uniform motion in a straight line, it will remain in a rest or uniform motion unless no external force is applied on it. तब तक वो मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा. The inertia is a natural tendency of the object to remain in the state of rest or uniform motion. This called as a inertia. उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे inertia से रिलेटेड, और कुछ why the reason question है, why the passenger pull when sudden start of the bus, yeah, when sudden brake applied by the driver and the passenger pull forward. तो ये सब why the seat belts are used, all this type of question they are related with the inertia. In the second video lecture हमने देखा the momentum. The momentum is a product of mass and velocity. This known as a momentum. और इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ द मोमेंटम इट इज ए kg मास का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये बात पढ़ा हमने. उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए. तो मोमेंटम का बात तो था, लास्ट टाइम में हमने मोमेंटम डिस्कस किया था. मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू द वेलोसिटी, ये पढ़ा. और फर्स्ट लॉ हो गया. अभी सेकंड लॉ पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ए मोशन. तो स्टेटमेंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम. टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होना, दिस नोन एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मीन्स चेंज इन ए मोमेंटम विथ टाइम, चेंज इन ए मोमेंटम विथ टाइम is directly proportional to the force applied. Yeah, force applied equal to change in momentum. तो इसका ये करते स्टेटमेंट हो गया ये. तो अब इसको प्रूफ यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m and moving with initial velocity u and final velocity is v. So momentum equal to this p equal to product of the mass and velocity. तो मास एंड वेलोसिटी, और हम इसका लिखेंगे मास एंड वेलोसिटी.
क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी। कौन सी इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। तो फाइनल मोमेंटम दिस इक्वल टू m इंटू v आएगा। तो v, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब change in momentum with time. This is a rate of change of momentum मतलब change in a momentum divided by time is directly proportional to the force applied. Force, there's a force, this equal to change in momentum। अगर proportionally constant यहाँ हम k यूज करेंगे, k, तो change in momentum, final momentum माइनस क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इसके साथ क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय टाइम। So this k equal to this value proportional constant is a 1। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv। इनिशियल मोमेंटम mu डिवाइड बाय टाइम t। तो फोर्स इक्वल टू mv माइनस mu डिवाइड बाय t, दिस नोन एज ए चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम। सो दिस देखो डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज कैसे बोलते? फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब है इट इज चेंज विथ ए टाइम, इसलिए टाइम डिवाइड किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो ये फॉर्मूला बन गया, द फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम वी डिवाइड बाई टी। तो फोर्स इक्वल टू एम कॉमन ले लो यहाँ से, तो यह आएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम t। तो फोर्स इक्वल टू मास का ये m, और ये टर्म का याद है तुम्हें क्या है? ये दिस इज a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t, दिस इज द एक्सेलरेशन टर्म। क्या है? एक्सेलरेशन। सो फोर्स इक्वल टू मास इंटू द एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला बन गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू द एक्सेलरेशन। अब यहाँ इसको जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। द फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी is directly proportional to the product of mass and acceleration, and motion takes place in the direction of the applied force। या force apply on a body is the product of mass and acceleration, ये भी definition लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरीके से ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ ए मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पड़ा? फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। बस इतना बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, सेम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एफ इक्वल टू एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी, और एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, या एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो फॉर्मूलेज है, इसका यूज करके हम ये सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अलग अलग टाइप के। तो इसमें देखो क्या लिखा है ये क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में दिया है ए डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए डिटरमाइन द एक्सेलरेशन दैट रिजल्ट व्हेन 12 न्यूटन फोर्स नेट फोर्स अप्लाई ऑन ए 3 kg ऑब्जेक्ट एंड 6 kg। सो 3 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर
फोर्स लगे हैं, कितना फोर्स लगे हैं, फोर्स इक्वल टू 12 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट मास कितना है, m1 plus mass equal to 3 kg, after 3 kg object and then 6 kg, वही फोर्स दूसरा F is equal to 12 न्यूटन और दूसरा मास है m2 equal to 6 kg। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स या फिर ये फॉर्मूला कितना सिंपल है, देखो F is equal to m है, तो F is equal to m into a। अभी ये फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो इसको इसी साइड में रखते हैं, तो ये आएगा F डिवाइड बाई m। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन दिया है, न्यूटन में है, और केजी मास का केजी में, तो कन्वर्शन का जरूरत नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स कितना 12 और मास कितना 3, तो 12 डिवाइड बाई 3 इज 4, यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसका भी एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास इसका m2, और फोर्स कितना है 12, ये कितना है 6 मास, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन, और दोनों केस में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब यहाँ देखो ये नेट फोर्स अभी 15 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन ए encyclopedia to cause the accelerate rate 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी अगर क्वांटिटी पढ़ने से भी समझ में ना आए कौन सा क्वांटिटी है, यूनिट देख लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन का मैंने यहाँ देखा, और फोर्स कितना दिया, फोर्स इक्वल टू 15 मीटर। दिस इज द गिवन एंड डिटरमाइन द मास ऑफ द, व्हाट इज द मास, सो F इज इक्वल टू क्या करेंगे m इंटू ए एंड मास इक्वल टू F डिवाइड बाई ए, और मास इक्वल टू F डिवाइड बाई ए, F कितना है फोर्स 15, एक्सेलरेशन 5, तो जिसे 3 kg। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो रिलेटेड मास और इससे रिलेटेड है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सपोज द स्लेड इज एक्सेलरेटिंग एट ए रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस रेट से ये एक्सेलरेट होता है। इफ नेट फोर्स इज ट्रिपल्ड and mass is double, then what is the new acceleration of the sled? तो ओरिजिनल क्या था, F is equal to ma, F equal to ma, F is equal to m mass acceleration 2, मतलब this is a 2 m, this is the one first condition। Suppose the sled accelerating at the rate 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मास हमने m कंसिडर किया, तो ये फॉर्मूला गया। अब इस सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, इफ नेट फोर्स इज ट्रिपल्ड, सो न्यू फोर्स एफ डैश इज ए ट्रिपल्ड, पहले से कितना था एफ था उसका 3 गुना बढ़ा है, और मास इज अ डबल्ड, तो न्यू मास एम डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस मास। व्हाट इज द न्यू एक्सेलरेशन, न्यू एक्सेलरेशन के लिए एफ डैश इक्वल टू एम डैश इंटू ए डैश। अब एफ डैश एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एफ डैश इस साइड में आ गया, इक्वल टू क्या होगा ए डैश। अब यहाँ ए डैश इक्वल टू एफ डैश डिवाइड बाई एम डैश, तो एफ डैश कितना है 3 है, 3 है, एम डैश कितना है 2 है, सो नेक्स्ट दिस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 3, एफ का वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1, एफ का वैल्यू कितना आ गया पहले से 2m, सो एफ का वैल्यू 2m यहाँ रखा, इसका वैल्यू यहाँ से, तो ए डैश इक्वल टू डिवाइड बाई क्या है 2m, दोनों कैंसिल हो गए, तो ए डैश न्यू एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना भूलना नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके बाद इसका यूनिट जरूर लिखना चाहिए। दूसरा देखो, सपोज स्लेड इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेट फोर्स इज ए ट्रिपल्ड एंड मास इज ए हाफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या था एम ए का वैल्यू रखा, एफ इज इक्वल टू 2m, ये इक्वेशन नंबर 1 आया था। अभी नेट फोर्स इज ए ट्रिपल्ड, मतलब एफ डैश इक्वल टू 3m,
and mass is a half, so m dash equal to m by 2. बराबर. So what is the new force? F is equal to m dash और a dash. तो f कितना है? 3f हो गया. m dash कितना है? आधा हो गया और इंटू a dash. अब f का वैल्यू यहाँ मिला हमें, यहाँ से इसका वैल्यू रखो, तो 3 इंटू 2m इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 इंटू a डैश. अभी 2 इस साइड आ गया तो कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू ये डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और ये m ये रखा और डिवाइड बाई यहाँ से कौन m यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ के डिवाइड होगा इक्वल टू a डैश. सो a डैश इक्वल टू m के साथ चला गया. 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, सो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दिस इज द आंसर. इस तरीके से ये आंसर निकाल सकते हैं. कुछ टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, उसका भी ध्यान रखो. यहाँ कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू स्पीड अप द कार एट द रेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ मास इज ए मास इज 100 kg. ये भी सीधा सा क्वेश्चन है. F इज इक्वल टू ma. कैलकुलेट द फोर्स नीडेड. तो फोर्स कितना चाहिए, का मास कितना है 1000 kg है और स्पीड कितना करना है. दिस इज द टर्म इज एक्सेलरेशन. तो 5, तो दिस विल बी है 5000 न्यूटन. इसका यूनिट कितना है? ये 5000 न्यूटन. आसानी क्वेश्चन है. इफ मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज 50 kg एंड फोर्स, what force will be required to speed up the object at the rate 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये भी आसान क्वेश्चन. F इज इक्वल टू ma. मास कितना है 50. जब ये मास केजी में नहीं दिया ग्राम में तो कन्वर्ट करना चाहिए तभी ये न्यूटन में आएगा. केजी में मास चाहिए. और ये दिस इज ऑब्जेक्ट स्पीड अप एट द रेट, मतलब ये कौन है? एक्सेलरेशन है. स्पीड अप एट द रेट मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का. सो दिस विल बी 100 न्यूटन. इस तरीके से ये आसान क्वेश्चन है. टू एक्सेलरेट द व्हीकल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ही है. अगर कभी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया क्या है तो इसका यूनिट देखना है. क्या यूनिट है मीटर पर सेकंड, किसका? एक्सेलरेशन का. व्हाट फोर्स विल बी नीडेड इफ मास ऑफ द व्हीकल इक्वल टू 100 kg. मास इक्वल टू 100 kg, कितना फोर्स लगेगा? ये भी आसान क्वेश्चन. ये फिजिकल एम है. तो ये एम कितना है? 100. 3, so this is 300 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस जैसे एक इम्पल्स टर्म्स है. इम्पल्स द फोर्स एट ए शॉर्ट ड्यूरेशन. फोर्स एट शॉर्ट ड्यूरेशन, दिस नोन एज इम्पल्स. और स्ट्रॉन्ग फोर्स इन ए शॉर्ट टाइम, दिस नोन एज इम्पल्स. तो इम्पल्स I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम t. ये एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसका आएगा कभी भी. और एक क्वेश्चन है, व्हाई द प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल. जब बॉल कैच करता है तो व्हाई ही प्लेयर लोअर हिज हैंड. तो व्हेन lowering his hand, the force equal to mass into acceleration होता है. और this is the acceleration velocity divided by time. और time t equal to m into m v डिवाइड बाई क्या आएगा? f आएगा. मतलब टाइम t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद f. अगर टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? कम होगा. मास एंड वेलोसिटी इज सेम, बट अगर टाइम बढ़ाएंगे मतलब व्हेन प्लेयर लोअर इज हैंड, नीचे करता है तो ये क्या करता है? इंक्रीज द टाइम. टाइम increases, so the force will reduced. एंड फोर्स कम हो गया तो उसका इंजुरी से वो बच जाएगा. अदरवाइज इट विल बी हिट एंड दे
हैंड को जाके बॉल को डायरेक्ट लगेगा, तो ही इंक्रीज द टाइम बाय लोअरिंग हिज हैंड एंड फोर्स इज रिड्यूस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द इंजरी। इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ही अपना हाथ लो करता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जिसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उससे रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड, और कुछ साइंटिफिक रीजंस इससे रिलेटेड अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इसके लिए ये सभी न्यूमेरिकल्स अपना कॉपी में लिखो, और ये आसान न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर ये अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी, इससे रिलेटेड। जैसे मास दिया है, एक वेलोसिटी दिया है और दूसरा वेलोसिटी पूछा है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स इज नोन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना और ये वेलोसिटी फाइंड करना थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, अदरवाइज ये आसान क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना ही। तो कल का वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।